Welcome back. In the last video lecture, we studied the power series and the radius of convergence of the power series. In this video lecture, we'll be discussing the interval of convergence and radius of convergence of the power series. How do we calculate the radius of convergence and the interval of convergence of the given power series? So let's start. The first question is, find the ROC, radius of convergence, and the interval of convergence of this power series summation n is equal to 1 to infinity x raised to the power n divided by n. So solution is on comparing this power series with this formal expression. So we'll have an is given by 1 by n and x naught is the center is 0. We have two methods by which we can calculate the radius of convergence of the given power series. The first method is, first of all we'll calculate an plus 1 by replacing n by n plus 1. So यहाँ पे n को हम n plus 1 से replace करेंगे, so we'll have 1 by n plus 1. So modulus of an divided by n plus 1 is nothing but n divided by n plus 1. So denominator में से हम n को कॉमन लेंगे, so we'll be left with 1 plus 1 by n, and n से n जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, so we'll be left with 1 by divided by 1 plus 1 by n. So radius of convergence is given by limit n tends to infinity modulus of an divided by an plus 1, which is nothing but limit. This is positive, so no need to put up modulus here. So limit n tends to infinity 1 divided by 1 plus 1 by n is nothing but 1 divided by limit of 1 plus 1 by n. 1 की लिमिट 1 रहेगी because it is a constant sequence. 1 by n की लिमिट 0 होती है, हमें पता है, हम सीक्वेंसेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं. लिमिट ऑफ 1 by n is always 0, so 1 divided by 1 is 1. Similarly you can check this method as well. ठीक है, दोनों मेथड से आरओसी हमेशा सेम ही आती है. ऐसा नहीं है कि एक मेथड से आरओसी जो है वो अलग आएगी और दूसरे मेथड से अलग आएगी. दोनों मेथड से आरओसी जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी. ठीक है, तो इस वाले मेथड से भी आप चेक सकते हो कि लिमिट जो है वो n रेज़ टू पावर 1 by n की, इसको भी हम सीक्वेंसेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि लिमिट n रेज़ टू पावर 1 by n इज ऑलवेज 1, सो आरओसी इज 1. So we have ROC is radius of convergence of the given power series is 1. So the given power series converges absolutely for modulus of x minus 0. 0 is your center. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था. ठीक है, दैट नोट वाज, if r is the radius of convergence of the power series, then the given power series converges absolutely for modulus of x minus x naught. X naught is center here. This modulus of x minus x naught is less than r. R is 1. Here r is 1. X naught is 0. So this given power series converges absolutely for modulus of x minus x naught is less than 1. X minus 0 is nothing but x, so that is modulus of x is always less than 1. And इसका मतलब है कि x is lying between minus 1 and 1. And by the last theorem, n diverges for modulus of x greater than 1. Modulus of x greater than 1 का मतलब ये है कि x is lying between minus infinity to 1, union 1 to infinity. Now we have two end points. ठीक है, जिसपे हमें इस पावर सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है. One is your x is equal to 1 and other is your x is equal to minus 1. So at x is equal to 1, the power series reduces to summation. x को यहाँ पे 1 substitute करेंगे. So this power series reduces to 1 by n. And we know that this is divergent series. ठीक है, by p series test. ठीक है, और Cauchy sequence की हेल्प से भी हम शो कर सकते हैं this is a divergent series. And at x is equal to minus 1, we'll have this series minus 1 whole raised to power n divided by n, which is convergent series by Leibniz test. ठीक है, Leibniz test में हमने पढ़ा था this series is always convergent series. So 1 पे this series is divergent and minus 1 पे this series is convergent. So the given power series summation x raised to power n divided by n converges for x belongs to, यहाँ पे हम close bracket यूज करेंगे because minus 1 पे सीरीज क्या है, convergent, and 1 पे हम इंटरवल को ओपन रखेंगे क्योंकि 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. दिस इज बिकॉज 1 पे क्या है, सीरीज डाइवर्जेंट है. सो सीरीज जो है, इफ x इज लाइंग बिटवीन minus 1 and 1 इंक्लूडिंग minus 1, देन द गिवन पावर सीरीज कन्वर्जेंस. सो इस केस में जो इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा, दस द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इज क्लोज्ड इंटरवल minus 1, 1, क्योंकि 1 पे जो है और इसके आउटसाइड जितनी भी वैल्यूज हैं उन पे ये सीरीज जो पावर सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है. ये देखो, डाइवर्जेस फॉर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 1, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो दिस इज योर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. यही आपको एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द आरओसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द आरओसी एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज. समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ,
पावर सीरीज के फॉर्म एक्सपेंशन के साथ ए एन हमारे पास हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल, ए एन प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो हम आर कैलकुलेट करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 विच विल बी योर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, दिस इज नथिंग बट एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विद एन प्लस 1 एंड दिस इज लिमिट इज इन्फिनिटी, लिमिट क्या आ गई इन्फिनिटी, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज योर इन्फिनिटी। So therefore, the given power series converges absolutely for modulus of x minus x naught. X naught is center is 0. यहाँ पे center क्या है 0 है, so modulus of x minus 0 is less than r. R is nothing but infinity, so that is modulus of x is less than infinity. सारे ही numbers जो हैं वो infinity से छोटे होते हैं, इसका मतलब है कि x is lying between minus infinity and infinity, that is nothing but x is a, so this power series converges absolutely for every real number. So the interval of convergence is the whole real number r. क्योंकि हर एक रियल नंबर का जो मॉड्यूलस होगा वो इन्फिनिटी से छोटा ही रहेगा। सो दिस यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो गिवन पावर सीरीज है दिस कन्वर्जेस फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, हर एक रियल नंबर एक्स के लिए ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, सो द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द होल रियल नंबर आर एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज इज इन्फिनिटी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, find the ROC and interval of convergence of the geometric series. ज्योमेट्रिक सीरीज की हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे सो वील हैव ए एन इज इक्वल टू 1, ए एन 1 है तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, फ्री ऑफ एन। इफ ए एन इज 1 देन ए एन प्लस 1 भी 1 रहेगा, दिस इज ए एन प्लस 1 भी 1 रहेगा। So R will be your limit this which is 1/1 which is nothing but, so radius of convergence आ गई हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज की, so ज्योमेट्रिक सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1। so therefore by the previous note, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नोट लिखवाया था, the power series this ज्योमेट्रिक सीरीज, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज दिस converges absolutely for modulus of x minus x naught, here center is 0 and less than r is nothing but 1, so that is modulus of x is less than 1 which is nothing but x is lying between -1 to 1 एंड डाइवर्जेस फॉर, इसके बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर क्या करेगी ये डाइवर्ज करेगी। जैसे ये रहा, दिस इज आर रियल नंबर, सो डाइवर्जेस फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सो डाइवर्जेस देखो -1 से 1 पे ये सीरीज क्या कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, बट स्टिल वी डोंट नो द बिहेवियर ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, और इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे ये सीरीज जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। एंड आउटसाइड दीज इंटरवल्स यानी -इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 से इन्फिनिटी तक दिस सीरीज डाइवर्जेस। सो हमारे पास अब कौन से दो पॉइंट्स बचे, एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट्स में हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। सो एट x इज इक्वल टू 1 दिस सीरीज इज दिस पावर सीरीज रिड्यूसेस टू दिस, इस पावर से ये जो सीरीज है दिस इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो एक सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसका एसओपीएस कन्वर्ज करता है। तो इसका एसओपीएस क्या होगा इस केस में n, एंड दिस इज इन्फिनिटी, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस सीरीज इज, सो इसका एसओपीएस जो है वो डाइवर्जेंट है, तो दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। एट x इज इक्वल टू -1 दिस इज अगेन डाइवर्जेंट बिकॉज इट्स एसओपीएस इज 0 एंड 1, सो दिस सीक्वेंस हैज 2 लिमिट पॉइंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सिर्फ एक ही लिमिट होती है, ठीक है, बट इट हैज 2 लिमिट्स 0 एंड 1। यहाँ पे पॉइंट्स, दिस हैज 2 लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि हर एक कन्वर्जेंट, ये हमने पढ़ा है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है, बट दिस हैज 2 लिमिट 0, दिस हैज 2 लिमिट्स 0 एंड 1 विच इज नॉट पॉसिबल, सो दिस कैन नॉट बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इसका मतलब है कि 1 पे भी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, -1 पे भी डाइवर्ज कर रही है, सो हमारा जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो यही रहेगा, ठीक है। सो द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज ओपन इंटरवल -1 to 1, ना तो -1 पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है ना ही 1 पे, बट -1 से 1 के बीच में हमने चेक कर लिया था यहाँ पे कि वो सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। सो द ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। सो ज्योमेट्रिक सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है 1 एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -1 to 1। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, होमवर्क है, ठीक है। सो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज
तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। सो आफ्टर नोटिंग डाउन दीज क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इनकी आरओसी निकालनी है और इनकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। सो ये आप लोगों के लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है आपको घर पे। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, सो प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को अच्छे से। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का जरूर आएगा ही आएगा। 2 नंबर का भी आ सकता है, आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछ सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।